The world is there is so many things. चलिए क्या पढ़े हम लोग इंडस्ट्रियल निकाल लो चलिए इंडस्ट्रियल बनाने सर chronological evidences देखे थे evidences for evolution. The first evidence was paleontological evidence. So what is the meaning of paleontological evidence? Based on the fossils. So we have fossils very deep down in the earth. तो धरती के बहुत अंदर जो fossils मिल रहे हैं वो बहुत पुराने हैं जो ऊपर मिल रहे हैं वो थोड़े से पुराने हैं ज्यादा पुराने नहीं. So we can see that there is gradation in the fossils. Just like we say, they have come from fishes and amphibian reptiles. So we see the fossils of fishes are more deep. Then they have on upper surface we have fossils of amphibians and reptiles and then humans. So these layers of earth says that as fossils are taken off, the evolution has taken place. Then second was embryological evidence. Third one was morphological and anatomical evidence. And fourth one was biochemical evidence. Then there was anthropogenic evidences. And then last is our industrial mechanism. So industrial mechanism says that in British countries before industrialization, that is pre-industrialization. Pre-industrialization. इंडस्ट्रीज के आने के पहले जो ट्रीज थे वो ट्रीज लाइकेन से कवर्ड होते थे. ट्रीज आर कवर्ड विद lichens. Now we all know that the lichens are indicators of pollution. If lichens are present, it means pollution is there or not? No. जैसे जंगल में जहाँ पे अच्छी हवा बह रही है, there is no pollution is there, no roads, no concrete buildings are there. Then in the forest you will find the presence of lichens. But in the city like this, है ना हमारे ये शहरी इलाका है, या कोई यहाँ पे lichens मिलते हैं क्या? You will never see lichens here. Why? Because the atmosphere is very much polluted. So lichens are the indicators of pollution. Now these lichens which are growing on the trees, they were white in color. जो lichens grow कर रहे थे ना कलर क्या था? White. और ये white color lichens के ऊपर ही there were two types of moths. Moths means you all know the insects. और ये moths दो तरह के थे. There were white moths and there were black moths. Lichen was white, but the moths are of two types, white and black. अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी चालू नहीं हुआ है, तो एटमॉस्फेयर इज फ्री ऑफ पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन नहीं, स्मोक इज नॉट देयर, so lichens are existing. So you tell me on white background, what color will be more prominently visible, black or white? Black. अगर सफेद बैकग्राउंड है तो फिर सफेद से दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी, लेकिन सभी जो ब्लैक खड़ी नहीं होगी. सो जो प्रे था, सॉरी जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर है, उस प्रेडेटर के लिए ब्लैक मॉथ को आइडेंटिफाई करना क्या था, काफी आसान. So the population of black moth was very very less in comparison to white. White moth का जो population हो क्या था ज्यादा, क्योंकि easily आइडेंटिफाई होते हैं. व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट लाइटिंग के ऊपर मॉथ ग्रो कर रहे हैं, तो जो ब्लैक वाले होंगे उनको प्रेडेटर आसानी से कैच कर लेंगे. तो रिलीजन साइज आती, तो देयर पॉपुलेशन साइज वाज लेस, बट द पॉपुलेशन साइज ऑफ व्हाइट वर.
But after industrialization, जैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया, that is post industrialization. Industry started developing. So industries का एक बार pollution बढ़ेगा तो हो जाएगा also. Yeah. The trees now do they have lichens? No more lichens. Lichens are gone or lichens चले गए. The trees are now covered with smoke and dust. Trees are covered with smoke and dust. तो trees का कलर क्या रहेगा? White हो जाएगा, black हो जाएगा. Yeah. So because trees are not covered with smoke and dust, they become black in color. Now for predator to identify white moth is easier. And white moth is very easy. उसको white कीड़े को पकड़ना बहुत आसान है. क्या कौन सा कैसा हो गया? Polluted trees का कलर कैसा हो गया? Black. So white moth को आसानी से वो पकड़ ले. तो आगे बताइए किसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा? व्हाइट का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया. Whereas जो ब्लैक वाला था उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. है कि नहीं? तो अब एनसीईआरटी ये कैसे बता रही है कि एविडेंस इन दिस हाउ इट इज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन? हाउ इट इज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन? Phenomenal change. ये how it is an evidence of evolution. अरे वैसे सोचो एनसीईआरटी ने क्लाइम की है. क्या लिखी एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी says when this conversion of atmosphere was taking place from pre-industrialization to post-industrialization. जब इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो रहे थे मौत को समझ में आ रहा था. कौन से मौत को? वाइट को. क्या समझ में आ रहा था कि भैया हमको पहले मारा नहीं जाता था लेकिन अभी हमारे सर्वाइवल के चांसेस कम होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. So now what is needed? Adaptation. So intelligent bodies here that there was some specific mod which shows camouflage. कोई specific mod है जिसने क्या शो किया? Camouflage. What is mean of camouflage? They change their color. तो जो white वाले अपने आप को camouflage होता है किसके अंदर? Black के अंदर. वो क्या कर गए? Survive. They could survive. But those who couldn't camouflage themselves from white to black, they didn't survive. So this capacity to camouflage is a part of fitness. So those who are fit, they could change themselves. But those who were not able to change themselves, they were settled by nature. No. So nature did a selection. Natural selection. और वो नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा? जिन्होंने अपने आप को कैमोफ्लेज किया. नेचर ने अपने आप को कैमोफ्लेज नहीं किया. नेचर ने को सेलेक्ट नहीं किया. And they died. But Anthony says it was not that any type of moth was completely extinct. ऐसा कभी नहीं हुआ कि moth white वाले सारे के सारे गायब हो गए. नहीं. They were there, but their size was small. The population size was less, but they were present, still present. And finally, so this capacity to camouflage, change oneself according to the environmental change, adaptation is a sign of evolution. कि अगर यहाँ पे ये अपने आप को चेंज कर पाए, कैमोफ्लेज कर पाए, है ना, व्हाइट से ब्लैक बन गए, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो क्या इतने सालों से धरती के बाद इन्वायरमेंट सेम तो रहा नहीं है. इन्वायरमेंट तो बदलता रहा है इन्वायरमेंट. तो क्या इतने इन्वायरमेंट बदलने के कारण लोगों ने स्पीशीज ने अपने आप को एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर किया हुआ कि किया? बस किया. When one can transfer itself from white to black, why cannot so many species have transformed themselves based on the different environments? So this is how it is a proof that evolution has taken place. That is the outcome. Yes. Then he says about this Darwin finches.
adaptive radiation. ये words ये भी use किया that evolution is not a dimensional process, it is random stochastic. ये भी use किया है क्या? हाँ, माइक्रोऑर्गेनिजम्स का बैक्टीरिया का वो कल बताया था मैंने आपको कि बैक्टीरिया वो जैसे से फीड द एनवायरमेंट वैसे से उनका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है. So because of which I give the example of fungal diseases. The medicine which were used for fungal diseases earlier, the same medicine is now not applicable. Why? Because the fungi has developed some resistance for it. So that is says कि जो evolution process है वो एक बहुत random process है, stochastic. कैसा process है? Stochastic. Stochastic मतलब क्या है? There is no direction for it. कि evolution इस particular direction में होगा. कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आज जो टाइगर है अगर उसके अंदर इवोल्यूशन होगा तो कौन सा एनिमल बनेगा. कैन यू अज्यूम दैट? नो, देयर इज नो प्रेडिक्शन अबाउट दैट. बट सपोज यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड और आप उस रोड पे चलते जाएंगे, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप कहाँ पहुंचेंगे? आप किसी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पहुंचेंगे? कर सकते हैं. और डायरेक्शन प्रोसेस आप बड़े इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इवोल्यूशन ऐसा नहीं है. यू कैन से कि आज इवोल्यूशन ऐसे होते 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 कल कोई ऐसा होगा. दिस फ्यूचर असम्पशन यू कैन नॉट मेक. इट इज रैंडम बाय चांस प्रोसेस. कभी भी कहीं भी कैसे भी किसमें भी हो जाएगा और उससे कुछ भी नया रिजल्ट निकल के आएगा. व्हाई? बिकॉज द कॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन इज म्यूटेशन और सडन वेरिएशंस. और ये सडन वेरिएशन और म्यूटेशंस कैसे होते हैं? वेरी क्विक. They are not very programmed changes. They occur very randomly, and the evolution is also very random. अरे ये सभी को चलिए नेक्स्ट हमारा क्या? एडेप्टिव रेडिएशन. So now ध्यान से सुनना बच्चों. यहाँ पे आपको इंसिडेंट एग्जाम दो एग्जाम्पल दिए हैं. एक दिया है डार्विन फिंचेस पे and another one is of Australian marsupial. So we all know डार्विन गया था. कहाँ गया डार्विन? गालापागोस आइलैंड पे एसएमएस बेगम अपने जहाज को लेके. और वहां जाके उसने आइलैंड पे देखा कि एक पक्षी है, स्मॉल स्मॉल. वो पक्षी को उसने बोल दिया फिंचेस. क्या बोला? फिंचेस. बाद में फेमस हो गया एज डार्विन फिंचेस. तो ये जो पंछी थे ये पंछी पूरे आइलैंड पे दिख रहे थे उसको. लेकिन he could see कि those finches are not having same type of eating habits. मतलब जो खाने का तरीका है वो सबका सेम है क्या? नहीं. मतलब वो खाने का तरीका क्या है? अलग अलग. और ये सब देखने में तो बहुत कुछ सिमिलर है, बट डिफरेंस इसमें उनकी मेनली चोंच में. The beak is mainly different. So people say this all finches have come from an ancestor. And that is वो ancestor जो finches में क्या खाती थी? Seeds. क्या खाती थी? Seeds. और वो ancestor finches से ये जो ancestor finches अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग habitats पे गई, तो वहां जाके उसके अंदर changes लेकर आए. तो adaptive means they have brought themselves adaptations. मतलब क्या लेकर आए वो? Adaptations. Now what is the meaning of radiation? हाँ, अभी सूरज है तो सूरज की किरणें सब धरती के अलग जगह पे आती है ना? तो वी कॉल इट रेडिएट्स, है ना? सन रेडिएट्स इट एनर्जी. मतलब सूरज एक ही जगह पे, लेकिन वो उसकी एक ही जगह से अलग अलग जगह पे क्या पहुंचा है? पूरी जगह को एनर्जी को रोशनी को पहुंचा नहीं पहुंचा रहे. यस. तो यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो एक ही ऑर्गेनिज्म जब अलग अलग जगह पे जाता है, इट गोज टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. वो अपने आप को रेडिएट कर रहा है अलग अलग जगह पे जाके. और वहां पर जाने के बाद उस जगह के अनुसार अपने अंदर चेंजेस लेके आता है. दूसरा क्या बोलते हैं हम? एडेप्टिव रेडिएशन. क्या लगे सर को? सो इन आर जोग्राफिकल एरिया, in a geographical area when an organism goes to different habitats. एक geographical area के अंदर लिखा जाता है अलग अलग habitats में जाता है और उस habitat में जाकर अपने अंदर changes लेके आता है. Then the phenomena comes out as adaptive radiation. अरे सर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट के अंदर ही आपको एक पॉड भी दिखाई देता है. छोटा सा कहीं पॉड होता है. एक जंगल के अंदर होता है, नदी है जो. एक जंगल के अंदर आपको कहीं पहाड़ भी दिखाई देते हैं. और फिर बहुत सारे पेड़ भी हैं. तो इसी ऑर्गेनिज्म हो सकता है पानी में जाकर उसके स्टेटस बदल जाए और पहाड़ पे जाकर लगे उसके स्टेटस बदल जाए, पेड़ पर तो स्टेटस बदल जाए. द सेम ऑर्गेनिज्म बट इन द geographical area it goes to different habitat. Water is a different habitat, mountain is different habitat, the trees are different habitat. वो अलग अलग habitat पे जाएगा
और उस हैबिटेट में जाके अपने अंदर चेंजेस लेकर आएगा, तो भी क्या शो करेगा आपको, एडेप्टिव रेडिएशन। और चूंकि रेडिएशन हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डायवर्जेंट इवोल्यूशन। So Darwin finches and Australian marsupial. Now, what is the meaning of marsupials? Marsupials are mammals only. Mammals ही होते हैं, लेकिन इनका जो यंग वंश है, वो यंग वंश का पूरा डेवलपमेंट मदर के वomb में नहीं होता है। The complete development doesn't take place inside the womb of the mother. The fetus or the young ones comes out of the mother, and the partial development takes place. And the remaining development takes place in the pouch. कौन सा pouch बोलते हैं उसको? Specific name is there for the pouch. सब pouch, सब कुछ तो नाम है pouch का। तो उस pouch का नाम है, देखा the best example is what? कंगारू। तो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हमको कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ दिखाई देते हैं? ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का स्टॉक था। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का स्टॉक, स्टॉक समझते हैं ना आप लोग? हाँ, और वही जब स्टॉक के मेंबर्स अलग अलग जगह पे गए, तो देन दे बिकेम डिफरेंट डिफरेंट, so their names are given and try to remember. Tasmanian wolf and different. Tasmanian cat भी है क्या? Tasmanian cat है कुछ नहीं? हाँ हाँ, Tasmanian वो Tasmanian cat है क्या? टाइगर कैट है। चलो 10 है शायद, 10 की 12। Tasmanian wolf, Bantam, tiger cat, then Bantam है ऊपर ये Bantam, हाँ नहीं Bantam है मुझे Bantam, Bantam एंड का देखना, शुगर वाइट है। ठीक से बहुत कोई यूज होता है, ठीक से इतना देखने को देखो, तो पहले तो बैंडेड एंड इधर बैंडेड ऐसा, ये एंड डी ए डी बैंड, और डब्ल्यू से कुछ है वो बैंड। हाँ, मार्सुपियल मोर। और क्या है? मार्सुपियल रैट। क्यों ये लिखे नहीं, ये है नहीं कोला, एक और बच गया है। हाँ, बैंडी फूट। हो गया ना? चलो सब लोग याद करना है, टाइगर। हाँ, और करिए ना। चलिए सब लोग याद करना है, 2 मिनट्स साइलेंस फॉर 2 मिनट्स ऑलवेज मार्सुपियल। They are living in the animal species and caution is very much anti. Koala, wombat, bandicoot, tasmanian wolf, banded anteater, tiger cat. The T and the WS
ATK, MMBB, WSG. You can make some acronym for something. TTP, MMBB, WSG. That's why they call California and TT, Tiger Patch, K for koala, K for kangaroo. So, हाँ, ट्रिक बना दो क्या बनाओ ट्रिक बनाओ बनाया ट्रिक क्या बनाया ट्रिक इसका ट्रिक क्या है जो नाम ही बोल देते हैं अच्छा रेड मोर वाइडर कैट होल the some tricks remember it is क्या है maybe WIC चलो याद हो आप लोगों को याद हो गया चलो ऐसा ही हो अब दो क्लास है क्या मैंने अनफॉर्चुनेट बस तो एक क्लास लो एक क्लास सोल्यूशन दे दो वो एक बात से टोटल पढ़ कुछ एंट्री के पढ़े चलो याद हो गया सभी को चलो चलो मुझे सब याद मुझे तो हो गया चलिए कौन बताया 11 की 11 नाम हाँ 11 है 10 के नहीं है अच्छा स्टूडेंट मेरिट एक है ना अच्छा आप कौन के हैं WS बस तो 10 तो आसान है टीटी के एमएम बेसिक WS टाइगर सब लोकल मैं बोलता हूँ टाइगर कैट टैस्मानियन वोल्फ कंगारू कोआला पैंडेट एंटीडर बैबिफोट पाइथन टीटी टीटी एमएम बेबी मार्supial वोल्फ मार्supial रैट W से वोल्फ नहीं कॉम्पैक्ट और शोर टाइगर हाँ क्या हो गया क्या ट्रीट है मैं बोल रहा ऐसे ऑलरेडी ट्रिक बोलना है तो मैं कैसे ट्रिक है जो ट्रिक को बोलना है सिंपल ट्रिक होती है बिना बोला ट्रिक नहीं होती। बहुत एग्जाम्पल नहीं हो गया 10 नाम हो ही नहीं रहा है 10 नंबर याद करना पड़ता है 10 नाम है याद होगा बच्चों सबको कितने लोगों को याद हो गया 10 नाम नहीं याद होगा 10 नाम हो गए बोलो हाइड्रेट 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 शुगर ये आप लोग क्वेश्चन आएगा बच्चों टेबल दिया जाएगा और दो एनिमल्स का एक्स वाई करके स्पेशल कर दिए और पूछा जाएगा एक्स कौन है वाई कौन है इफ यू रिमेंबर द नेम्स the question can come from that diagram चलिए now NCERT is given a specific statement regarding this और ध्यान से सुनना है आपको जो डायग्राम है डायग्राम डायग्राम के ऊपर ही दो तीन लाइन पहले की स्टेटमेंट चालू हो रहा है और बोलूंगा आप लोग ध्यान से सुनना है समझेंगे वो स्टेटमेंट That he operates in a large geographical area. In a large geographical area. एक बहुत बड़ा geographical area है. In a large geographical area, more than one adaptive radiations are
कितने रेडिएशन से मोर देन वन, है ना। एक हमारे पास एंसेस्टर वन है और एक दूसरा एंसेस्टर टू, इन लार्जर typical area more than one adaptive radiations are seen. Then it is called as convergent evolution. ऐसे है क्या स्टेटमेंट? ध्यान से सुनना बच्चों। हाँ, क्या बोला? तो in a large geographical area, more than one adaptive radiations are seen. Then it is called as what? Convergent evolution. ध्यान से सुनना बच्चों कैसे? तो यहाँ पे एक हमारे पास एंसेस्टर है वन और दूसरा एंसेस्टर है एंसेस्टर टू, है ना। और इस लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में सपोज हमारे पास मल्टीपल हैबिटाट्स हैं, वी हैव मल्टीपल हैबिटाट्स। और लोग हैं 10 हैबिटाट्स है ज्योग्राफिकल एरिया है और ज्योग्राफिकल में हैबिटाट्स कितने हैं? 10 10 अलग अलग हैबिटाट्स है। ये ऑल एडिशनल टर्म हैबिटाट्स है। हैबिटेट समझते हैं आप लोग, है ना। रहने के लिए जगह 10 घर है समाना, ये बिल्डिंग बड़ी जगह, यहाँ पे 10 घर है। अभी इन 10 हैबिटाट्स में दोनों रहने के लिए जा रहे हैं, एंसेस्टर वन भी जा रहा है, ancestor one also goes to live all the 10 habitats, हाँ, वो सुंदर में जाता है। और उसके साथ में जो ancestor टू है वो भी उन सारे सारे हैबिटाट्स में जा रहा है। ancestor वन also goes, ancestor वन also goes and ancestor टू also goes। समझे सभी को? बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया है, बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में 10 हैबिटाट्स है और वो 10 हैबिटाट में दोनों रहने के लिए जा रहे हैं। कौन सा दो? एंसेस्टर वन और एंसेस्टर टू ऑल्सो। अभी सपोज जो एंसेस्टर वन जाएगा वन वाले हैबिटेट में, तो एंसेस्टर वन उस एरिया के अराउंड अकॉर्डिंग, उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने तो चेंजेस दिख रहे हैं, यस और नो? यस। और एंसेस्टर टू जाएगा तो वो भी उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने क्या लेके आएगा? चेंजेस। अब ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है, एंसेस्टर वन अलग है, एंसेस्टर टू अलग है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी फूड की रिसोर्सेज वो सेम रहेगी क्या? है? अरे दो स्पीशीज अलग अलग है ना, तो खाना सेम रहेगा अलग रहेगा? खाना तो अलग रहेगा ना। हैबिटेट ठीक है भाई। एक होटल में एक रेंट में मिलती है, कोई वैरायटी मिलती है ना खाने। जरूरी कि एक हैबिटेट में एक ही तरह खाना होगा, राइट? फूड कैन बी ऑफ डिफरेंट वैरायटी, यस और नो? यस। तो अभी एक ही हैबिटेट में दोनों रह रहे हैं, ए वन भी रह रहा है और ए टू भी रह रहा है। तो ए वन और ए टू, तो दोनों के अंदर चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस सेम रहेंगे अलग अलग रहेंगे? तो बताइए उन दोनों के अंदर चेंजेस सेम रहेंगे अलग अलग होंगे? अरे आपने आपको देखो, आप में से कोई महाराष्ट्र में एक गांव से दूसरा कोई दूसरे गांव से, सब ये ऑल आर फ्रॉम सेम विलेज और डिफरेंट विलेज, एक गांव से आप लोग सब अलग अलग गांव से है ना। तो अलग अलग गांव से है, लेकिन विदेशता आने के बाद शेड्यूल सेम फॉलो करते हैं, अलग फॉलो करते हैं? Same follow written. So you all have come from different places, but after coming here, studying same subject, sitting in the same class, following the same schedule, eating the same food, सब कुछ कर रहे हैं, सेम कर अलग कर रहे हैं। सेम करते हैं ना, तो आप सब क्या शो कर रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट बस वही है। हैबिटेट वन के अंदर ए वन भी आया और ए टू भी आया, हैबिटेट तो सेम है ना। तो हैबिटेट में रहने के लिए ए वन और ए टू दोनों को सेम चेंजेस करने पड़ेंगे, अलग चेंजेस करेंगे वो सेम चेंजेस। तो फंक्शनिंग कैसा रहेगा? सेम रहेगा अलग रहेगा? फंक्शनिंग सेम रहेगा, लेकिन उसका ओरिजिन कैसा है? अलग। तो ओरिजिन अलग और फंक्शन सेम, कौन सा होगा? अब वापस एनालॉग है, एनालॉग होगा। तो इसलिए क्या शो करेंगे वो? कन्वर्जेंट। तो ऐसा लग रहा है कि ए वन का अलग अलग जगह पे जहाँ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अगर आप सिर्फ ए वन का एडेप्टेशन देखेंगे, ए वन ने अपने आप को अलग अलग जगह पे रेडिएट किया और वहां जाकर एडेप्टेशन किया। So adaptive radiation of A1 is divergent evolution. Adaptive radiation of A2 is divergent evolution. But combined adaptive radiations of both of them, A1 and A2, in a large geographical area,
is not divergent evolution, but it is a convergent. सर स्टूडेंट सभी को बस पहले सर ने एग्जांपल दिया आपको क्लास सेंट्रल मैमल्स का और ऑस्ट्रेलियन मार्supials का कि क्लास सेंट्रल मैमल्स भी वहीं पे रहने गए जहाँ पे कौन भी रहने के लिए ऑस्ट्रेलियन मार्supials तो मैमल्स कई एक वैरायटी मार्supials मैमल्स ही है दोनों लेकिन स्पीशीज तो अलग अलग है ना सेम तो नहीं है भाई उनका क्लास या डिवीजन सेम होगा but they are not same species they are different species but when they went to the same habitat the changes which occurred in them were same not different because of which they look very similar. वैसे है मोटे बना के फुल पता पड़ता ही आपको पिक्चर में दिखा होगा है ना क्लासिकल मैमल्स और मार्सुपियल्स दोनों का चार्ट बनाया है तो वो सारे के सारे वो मैमल्स और मार्सुपियल्स है जो एक ही हैबिटेट में रहने गए थे तो आपको दिखा होगा आपको इसमें कॉम्बिनेशन ना नाम लगभग सबके सेम है तो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर ठीक है क्लियर सभी को ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है वेरी आगे बढ़ जाना है आपका लिखना है क्या स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी से कॉपी करना है एनसीईआरटी में आपको स्टेटमेंट नहीं मिला एनसीईआरटी नहीं मिला एनसीईआरटी में स्टेटमेंट देखो अरे बच्चों की देखो यहाँ से चालू हो रहा है when more than one electric radiations appear to have occurred ना सभी को मैं फॉर्मूला स्टेटमेंट डाल सके when more than one electric radiation है ना when more than one electric radiation है तो दो electric radiations हुए electric radiation one electric radiation two दो अलग अलग resistors का appear to have occurred in an isolated geographical area कहाँ पर हुआ रेडिएशन एक बहुत बड़े आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटाट्स और ज्योग्राफिकल रीजन में क्या है बहुत सारे अलग अलग हैबिटाट वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इकोलॉजी तो क्या बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट example is given placental mammals in Australia also exhibit adaptation in involving into varieties of such placental mammals each of which appears to be similar to a corresponding marsupial. Tapetia, mole, marsupial mole, anteater, nuthat, mouse, marsupial mouse, lemur, Sparatuscus, flying squirrel, flying harringer, pomcat, Tasman tiger cat, wolf and Tasmanian wolf. Biological evolution, mechanical evolution, copy हो जाएगा. Ideal principle. अरे चैप्टर शुरू है. चल मुझे आपका ना मैसेज आ रहा है भाई यार ये सुना उससे नहीं प्रजल की जगह चिंता मत कीजिए आएगा भी कभी और पढ़ाई को मेरा उल्टा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चलिए what else for the what other topic है हम लोग this topic biological evolution तो एनसीईआरटी बोल रही है that in prokaryotic organisms कौन सा organism तो prokaryotic organism मतलब कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कौन है बैक्टीरिया एनसीईआरटी says in bacteria evolution started when there was diversity in their metabolism evolution कब शुरू हुआ जब उनके क्या है मेटाबॉलिज्म में डाइवर्सिटी है जब तक कि डाइवर्सिटी नहीं आएगा इवोल्यूशन हो सकती है नहीं हो सकता तो ये डाइवर्सिटी आया कैसे तो आपका आंसर ने एग्जांपल दिया है कि सपोज मैं टेक अ प्लेट बैटरी प्लेट बैटरी में समझते हैं ना कल्चर प्लेट जिसमें हम ग्रो कर रहे बैक्टीरिया को और इस कल्चर प्लेट के अंदर हमने बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडिया रखा है वी हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया और इस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया इन दिस न्यूट्रिएंट मीडिया जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है
बस बैक्टीरिया को हमने बोल दिया है बैक्टीरिया ए। क्या बोलते हैं बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया। यहाँ पे कल्चर प्लेट है, न्यूट्रिएंट मीडिया है, और न्यूट्रिएंट मीडिया में बैक्टीरिया होकर बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया ए। अभी होता क्या है कि हम यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स में से हम एक चीज गायब करते हैं। जैसे सपोज आपको रोज लंच में क्या मिलता है? फिक्स है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, और केवल चेंज होती रहती है, बाकी दाल चावल फिक्स होती है। अब सपोज हम कल से उसमें से एक चीज माइनस कर दें, तो सपोज चपाती हटा दें, तो आपको क्या मिलेगा? सब्जी दाल और चावल। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे चलता है दाल चपाती के लिए ऐसे कच्ची में दाल चावल सब्जी डाल के खा पड़े। और कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं, हाउ वी कांट ईट राइस ओनली, वी नीड सम चपाती, कच्चे रहेगी चपाती चाहिए ही चाहिए। तो some will able to survive, some will not able to survive। तो जो सर्वाइव कर जाएंगे वो क्या जाएंगे? हायर और सुपीरियर। और जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो क्या बोलेंगे? इंफीरियर। Then that is says after removing after removing one component of nutrient media। यहाँ पे न्यूट्रिशन दे रहे थे उनको, वो न्यूट्रिएंट मीडिया जो डाइट थी बैक्टीरिया की डाइट में से एक एलिमेंट को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। वन एलिमेंट वाज रिमूव। सो नाउ देयर इज न्यू डाइट। डाइट सेम है क्या अभी? अभी डाइट सेम बची क्या? नहीं, न्यूट्रिएंट मीडिया इज सेम और द न्यूट्रिएंट मीडिया इज डिफरेंट। चेंज हो गया न्यूट्रिएंट मीडिया। अब इस नए न्यूट्रिएंट मीडिया में फिर से इन बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया। दीज बैक्टीरिया वर ग्रो। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे बैक्टीरिया नए न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो नहीं कर पाए। क्यों नहीं ग्रो कर पाए? क्योंकि वन एलिमेंट वाज मिसिंग। बहुत सारे लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बोले कि अरे हमको न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं मिलेगा, हाउ कैन वी सर्वाइव? दे डाइड, दे कुडंट सर्वाइव। बट कुछ लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सर इवन दो दैट न्यूट्रिएंट वाज नॉट प्रेजेंट, वो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं था, इवन दो देन वो सर्वाइव करके, मुझे नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, हम आगे चला देंगे गाड़ी, वी कैन सर्वाइव। तो फिर उनको हम बी नहीं बोलेंगे। नाउ दे हैव बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज, नाउ दे विल कॉल्ड एज व्हाट? बी। इससे क्या बन गया? वो बी। सो अर्लियर तो ऑल कंपोनेंट्स आर प्रोवाइडेड, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सबके सब दिए गए, लेकिन यहाँ पर वन कंपोनेंट इज मिसिंग, एक कंपोनेंट गायब है ना, एक कंपोनेंट गायब है। So those who survive, those who survive in new medium became gradually a new species of bacteria. Gradually, the medium became gradually a new species। तो धीरे धीरे क्या बन गए? नए स्पीशीज बन गए। पहले ये ए थे, लेकिन अभी वो क्या बन गए हैं? बी। दे हैव changed themselves, evolved themselves। चलो देखो, अभी ऐसे यहाँ से लेसन निकालने वाले हैं। क्या लेसन निकालना है? कि जब हमने अभी बैक्टीरिया का कंपोनेंट चेंज किया, तो दिस चेंजिंग द कंपोनेंट इज लाइक चेंजिंग द एनवायरनमेंट। ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो चेंज करना किसके समान है? एनवायरनमेंट चेंज करने के समान है। अब कुछ लोग इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं, कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पा। लेकिन ये बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन देखा जाए तो बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन किसमें होता है? सेकंड्स, मिनट, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स। किसमें होता है? मिनट्स में होता है। एक बैक्टीरिया जीना पड़ता है कितने दिन में? मिनट्स में। जैसे ई कोलाई, कितना लाइफ स्पेन है उनका? 20 मिनट्स। एक बैक्टीरिया ने डिवाइड किया, लाइफ स्पेन क्या हो गया? खत्म। खत्म हो गया ना। तो एक से दो मिनट के बीच में अगर एक बैक्टीरिया जिंदा हो और बीच में मर गया, तो नाउ तो 20 मिनट्स इज अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड स्मॉल टाइम पीरियड। तो जब लाइफ स्पेन इज वेरी लेस, ध्यान से सुनना, लाइफ स्पेन इज वेरी लेस, then the rate of evolution is very very fast। तो वो क्या हो जाएगा? टाइम का क्वेश्चन, एनर्जी क्वेश्चन। If the lifespan is very less, the rate of evolution is very, very fast. But you same apply to the human beings or any organism जिनका लाइफ स्पेन सालों या डिकेड्स में जाता है। तो हमारे अंदर इवोल्यूशन को दिखने में समय कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारा लाइफ स्पेन कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। So bacteria
having very small lifespan can show the rate or effect of evolution very fast. But those who are having very large lifespan, in them this dystrophy takes a lot of time. So, now anxiety talks about the fitness regarding this. क्या बोल रहे हैं anxiety? कि जिनके अंदर रेट ऑफ इवोल्यूशन ज्यादा है, इवोल्यूशन क्या है, ज्यादा है, या अपने अंदर को अपने आप को इवॉल्व करने की कैपेसिटी ज्यादा है, दे आर एक्चुअली फिट. अब ये फिटनेस किसी पे डिपेंड करता है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे. फिटनेस डिपेंड fitness depends on those characteristics which are inheritable or inherited. है ना, fitness पे डिपेंड करता है उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो भी क्या है, इनहेरिटेबल है. मतलब कि माता पिता से किसमें जाएंगे, वो बच्चों में जाएंगे. सर मैं सभी को मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पेरेंट्स, सपोज मदर इज अ वेरी गुड डांसर, इज नेसेसरी चाइल्ड इज आल्सो गुड डांसर. Some chances are there, but is it compulsory like that? No, it is not compulsory. Why not compulsory? Because it is an acquired character. It is not inheritable. Inheritable है क्या वो? But it is something which is acquired during the lifespan. तो यहाँ जो बैक्टीरिया थे बहुत सारे ये वाले, उसमें से कुछ के अंदर ही जो कैरेक्टरिस्टिक था, कौन सा वाला, नए कंपोनेंट में सर्वाइव करने का, वो इनहेरिट हुआ. इसीलिए वो ट्रांसफर होने के कारण कुछ लोग सर्वाइव कर पाए, बाकी लोग सर्वाइव क्या नहीं कर पाए. तो फिटनेस है ना, fitness is an ability which comes from parents. It comes from parents. How it comes from parents? हाँ? So that is explained by now target. बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, है ना. तो अभी बीच में आप लोगों ने छोटा सा सवाल पैदा दिया है, जहाँ लिखा है branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwin. वो सब छोटे में डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ. पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है थॉमस मैथ्स. क्या लिखा है, थॉमस का लिखा है माल्थस, MALTHUS, है ना. हाँ, वो पहला लेमार्किज्म वाला, और इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस और इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, वो सब मालूम नाम हम लोग इसमें जंप करते हैं. डाल्विन का थॉमस मैथ्स का रिलेशनशिप. तो देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज थॉमस मैथ्स. क्या नाम है साइंटिस्ट का? हाँ. तो ये कहानी बहुत ज्यादा सुनाई, ये कहानी ऐसी समझ में आ गई तो आपको पूरा कल्चर समझ में आ जाएगा. बहुत टाइम बाद तरीका को टेंशन नहीं आता, मेरा एक लगता है. क्या बोल रहे हैं? ध्यान से समझो. तो साइंटिस्ट का नाम है थॉमस मैल्थस. क्या नाम है? हाँ. तो ये साइंटिस्ट ने इसका स्टडी था पॉपुलेशन के ऊपर, इसका स्टडी था इनका. तो ये साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भैया देखो, पॉपुलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया इकोलॉजी में. क्या पढ़ा आपने इकोलॉजी में? कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल. एक होता है लॉजिस्टिक, दूसरा होता है एक्सप्लोरेशन. वेरी गुड. विच वन इज मोर रियलिस्टिक? Very good. Why it is more realistic? Because the nature has a particular carrying capacity. और carrying capacity के अनुसार ही हमारा population size grow कर सकता है. K depend N, capital N depends on K. Yes or no? And when capital N becomes equal to K, then situation is called as asymptote. पढ़ा लोगों ने, पढ़ाई नहीं पढ़ा. तो अभी इसने क्या बोला थॉमस मैल्थस ने, कि always the resources in the nature are limited. Resources कैसे होते हैं हमेशा? The first point is resources are always limited. Because resources are limited, there is always competition among the species. तो species के अंदर भी, within also and without also. क्या होता है हमेशा? Competition. और जब competition रहेगा, तो competition में क्या होगा? Some species will have more better adaptability to use the resources, and some will have less adaptability. और बहुत जनरल एग्जाम्पल, अब अभी हमारी अकेडमी है, हमारे अकेडमी में सिस्टम है, मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है. खाना आधा घंटा बाद किसी मिलता है, क्लास चलता है, टीचर आकर पढ़ाता है,
बच्चे का टाइम मिलता है, एग्जाम होता है, सब कुछ होता है। तो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज देयर आर नॉट, द रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, टैब इज देयर, यू ऑल हैव बुक्स इन इट, the teachers are there, all basic minimum facilities there. Yes or no? Yes. The resources are there, but some are using the resources properly, some are using resources improperly. Agree or not? टैब दिया तो किसके लिए? वेरी गुड, पढ़ाई करने के लिए। उसको क्या करते हैं उससे? सब पढ़ाई करते हैं, और वहीं से लोग क्या करते हैं? वेरी गुड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, you have YouTube, then you have uh, Google, Chrome. I'll not go into details. So a lot of things are there. Yes or no? Yes. So people are not using the resources properly. So the same is Thomas and Arjun saying, कि resources are there, but some species will have the better adaptability to use the resources properly. और जो उन resources का utilization अच्छे से करेगा, resource utilization अच्छे से करेगा, वो क्या कहलाएगा? Superior. क्या कहलाएगा? Superior. और चूंकि वो resources utilization अच्छे से कर रहा है, उसका reproductive ability ज्यादा और कम होगा, ज्यादा होगा। वो अपने ऑफिस में ज्यादा छोड़ जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा छोड़ जाएगा। लेकिन जो दूसरे वाले, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर रहे, उनके नंबर ऑफ प्रोजेनी विल बी लेस और मोर लेस, their reproductive fitness will be less or more less, so their chances of survival will be less or more less। तो जिसने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल विल बी मोर, और वो जो भी सर्वाइव करेगा, वो धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता जाएगा, एंड ग्रेजुअली इट विल ओवरकम वो जो दूसरा स्मॉल ग्रुप था, जो कि यूटिलाइज नहीं कर रहा है, उससे कंपेरिजन में इसका नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि वो छोटा सा एक समय के लिए गायब जैसे दिख रहा है। इट हैज नॉट नो more existing and the whole area or the whole resources remain overpowered by the superior species। और ग्रेजुअली जिसने रिसोर्स यूटिलाइज किया, वो ग्रेजुअली क्या बन जाएगा? न्यू स्पीशीज। क्या बन जाएगा धीरे धीरे? और जिसने यूटिलाइज नहीं किया, इट विल बी एक्सटिंक्ट, हो जाएगा वो एक्सटिंक्ट। सर मेरा सर क्या हुआ? तो क्या स्ट्रक्चर बच्चों? पहला स्ट्रक्चर था, फर्स्ट पॉइंट वाज resources are always unlimited, limited, because of limited resources what happens always? Competition occurs। और कंपटीशन में कुछ स्पीशीज ऐसे रहेंगे जिनके अंदर इनहेरिटेड ऐसे क्वालिटीज हैं, जिससे कारण वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे। आईक्यू ऑलरेडी ज्यादा है, क्या करोगे आप? वो पढ़ पा रहे हैं, दिमाग है उसके बाद कर पा रहे हैं, लेकिन किसी का आईक्यू है कुछ नहीं। तो किसी का कहीं चलता है, सबका अपना अपना एक फील्ड है। जैसा now you tell me to do something which I don't like, then I'll be dumb fellow in that। Just like in traveling cases, I am very dumb in my life। I have got so many blunders I have done in traveling। सुबह 4 बजे का ट्रेन था, शाम को 4 बजे स्टेशन पे पहुंचे जाता हूँ। ट्रेन वगैरह में 12 घंटे पहले ट्रेन याद करवा देता हूँ। so many times the train I have slept, वो स्टेशन आके चला गया है, waking up tired, थोड़ा लगे जाके अहमदाबाद पहुंच गए। अभी again I have to go back to the train you board। Like this so many times bundle, and I'm very bad at making plans for traveling। I'm very bad at many sports, all of this sports। And then the time पर से एक बॉल के पीछे 11 लोग दौड़ते हैं, और नॉनसेंस दिस। जिंदगी में इतनी सारी बॉल देखी, एक बॉल खरीदने के लिए अपना 11 में एक ही बॉल मिली थी बॉल। Five people sport like could be very useless, five people do that। Just like mathematics, don't like to write at all। हमें लिखने के लिए बोलोगे, I chose biology man, because in biology you don't have to write anything, everything is mind, you read, everything happens। In my life I never made any notes, nothing। I'm very lazy in terms of writing, somehow I end up writing on boards। And I am told just by speaking you can teach, just you can teach, but समाज में गाली चल रही है हमारे। So I'm very bad at many things, but I have some good things also। I think everybody is there, your IQ may work at some places, like I'm very creative, to tell me to design something, write, create something, I'm very good at। But to manage, plan, and systematically do something, I can do if I'm told, but from my own, I don't like very organized things।
Like, so everybody has their own features. So in some particular case, and that is saying they are better because of their inheritable characters. They are good at utilizing the resources nicely, and because they are using resources properly, their chances of survival are more. How their chances are more? Because they are utilizing resources nicely. Their reported fitness is high. What is their reported fitness? They will need more number of progeny. और अगर progeny रहेगी तो उनके chances क्या survival के ज्यादा. लेकिन जो रिसोर्स यूटिलाइज नहीं कर रहा है उसकी प्रोविजन कैसे रहेंगे कम के ज्यादा बहुत कम तो उसके चांसेस है सर्वाइवल के कम एंड जिसके चांसेस ज्यादा है उसका नंबर आउट ग्रो करते जाएगा करते जाएगा और धीरे धीरे एक नया स्पीशीज बन जाएगा लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे वही कम हो जाएगा सर्वर से बात है हाँ सो विल रीड द पैराग्राफ देन विल मूव ऑन देन मेरे पहला थोड़ा आपको समझ में आएगा चलिए इट इज पॉसिबल दैट it is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. डार्विन को किसने इन्फ्लुएंस किया था थॉमस मैल्थस ने कैसे इन्फ्लुएंस किया था उसके काम से कौन सा काम था उसका बच्चों their work on population. Now, natural selection is based on certain observations which are factual observations. For example, natural resources are limited. First, populations are stable in size except for seasonal fluctuation. So, population, हमारा बहुत see, population is growing, but fluctuation is something else. Fluctuation समझते हैं ना आप लोग? जैसे आप लोग क्या होते हैं एक सैलेड इसमें 450 दूसरे में 350 तीसरे में 500 फिर 450 ऐसा फ्लक्चुएशन आता रहता है but fluctuations are there but still you are growing or not as the time is passing your understanding of the subject your command on the subject is becoming more and more strong the fluctuations are there but ultimately you are growing also the populations are stable in size जनरली पॉपुलेशन कैसे रहते हैं एनवायरमेंट में स्टेबल रहते हैं एक्सेप्ट क्या होते हैं सीजन कुछ चेंज हो गया तो लोगों का मरने का चांसेस बढ़ जाता है फिर स्टेबल होने में समय लगता है मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एक आप पॉपुलेशन देखिए भले एक ही स्पीशीज है ह्यूमंस इतने सारे बट इज इट ऑल ह्यूमंस आर सेम सारे ह्यूमन सेम है क्या नहीं क्लास में सब बच्चे बैठे सब लोग बाहर के पास रखे टॉप ले गए लेकिन सब बच्चे सेम है क्या नो एवरीबॉडी इज डिफरेंट because of this uniqueness people have different capacity to different people have different capacity to use resources differently समझ में आ रहा है so this inherent characteristic is there to other members of a population vary in characteristics in fact no two individuals are like even though they look superficially similar most of the variations are inherited कैसे variations और variations parents have the fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally. ये theoretical है बोलने की बात है कि मैं population की size कैसे grow करेगी exponentially लेकिन वो reality में ऐसा होता नहीं है. This fact can be seen in going back to population and the fact that population sizes in reality are limited. They are not growing exponentially. Reality में कैसे grow करते हैं लोग? They limitedly grow. Means that there had been competition for resources. क्योंकि resources limited है वहां पर क्या होगा उन resources के लिए competition आगे only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. तो कुछ ग्रो करेंगे किसकी कॉस्ट पे नीड में कुछ सिलेक्शन होगा एट द कॉस्ट ऑफ those who couldn't study well. Yes, sir. Yes. The novelty and brilliant insight of Darwin was this. How much important? He asserted that variations which are heritable and which makes resource utilization better for few. कुछ लोगों के अंदर इनहेरिटेबली अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है और जिससे कारण क्या हो रहा है वो रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो इनहेरिटेड है उन्होंने कैसे लाए नहीं वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर से बचपन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण वो रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं will enable only those to reproduce and leave more progeny और जो यूटिलाइज को अच्छे से करेगा उसी के प्रोजेनी का नंबर क्या रहेंगे ज्यादा रहेंगे hence for a period of time
over many generations. एक generation में नहीं होगा ऐसा, कितने generations? Multiple generation में ऐसा होता रहेगा. Survivors will leave more progeny, and there would be a change in population characteristic, and hence new forms appear to arise. And ultimately there will be speciation. मतलब एक नया species निकल के आए. समझ सभी को ना? So there is a flow of what Darwin says. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिटनेस बोला गया है, वो फिटनेस उन कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? एक्वायर्ड की इनहेरिटेड. इनहेरिटेड. इसलिए हम लोगों ने पहले पेश किया, पहले पेश किया, पहले पेश कर देखो पढ़ रहा हूँ. नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस. है आपको राइट? इधर ये वाले पेज पे बायोलॉजिकल नॉलेज में जो पेज है ना, यहाँ पे देखिए नीचे एक लाइन है. नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस. वहां से पढ़ रहा हूँ मेरा सबको. मेरा nature selects for fitness. One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherent. Fitness से based है. देखा था मैंने आपने. Fitness depends on those elements which are inherited. Hence, there must be a genetic basis for getting inherited or getting selected into each one. Because inherited or something is related with DNA. जो चीज डीएनए में है वही क्या होगा? पेरेंट्स ऑफिस में जाएगा. जो डीएनए में नहीं जाएगा तो ऑफिस में नहीं जाएगा. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited. It has genetic basis. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. So because their genes have somewhere in such a way कि उनकी जेनेटिक मेकअप इस तरीके से है कि दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट. वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं. और जो कि अडॉप्ट कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे नेचर में सिलेक्ट हो जाते हैं. अल्टीमेटली दे बिकम द फिट वंस. समझ सभी को? ये एनसीईआरटी ने बोला है. लेकिन वो काम कैसे कर रहा है तो वो ये डार्विन ने पूरा चीज बताया बिना कुछ सुने. चलिए तो वो लिखा है इसको भी. तो दिस इज द डार्विनिज्म जो डार्विन ने बताया था. द थ्योरी ऑफ डार्विन इज कॉल्ड एज डार्विन. तो थॉमस मैल्थस ही वर्कड ऑन. किस पर काम किया था उसने? पॉपुलेशन. क्या बोला उसने? बिकॉज इन नेचर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. Members of population are different. Their capacity resources is different. Competition due to lack of resources. Better way. Yes.
And देखो सबने सलूट करी हम लोगों ने देखो पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनना है क्या हुआ थॉमस मैल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर काम किया उसने और पॉपुलेशन रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड और उस पॉपुलेशन के जो मेंबर्स है वो मेंबर्स सब सेम है क्या नहीं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दे वेरी डिफरेंट और सपोज जो कैपेसिटी है रिसोर्स यूटिलाइज करने की कैपेसिटी भी क्या है डिफरेंट एंड बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड देयर इज व्हाट कंपटीशन एंड जो भी किसी के पास ऑलरेडी इनहेरिटेडली एबिलिटी है किस चीज की एबिलिटी है रिसोर्सेज को यूज करने की अच्छे तरीके से तो वो अच्छे से यूज करेंगे और आउट ग्रो कर जाएंगे दूसरे कॉस्ट टू और जब ऐसा मल्टी जनरेशन का होता रहेगा तो दे विल बिकम अ न्यू स्पीशीज हाउ बाय लिविंग मोर प्रोजेक्ट्स so they will be adapted more better than the others. समझ सभी को ना? चलो हो गया सबका तो भाई ठीक है 5 मिनट के लिए ठीक है चलो हम लोग 5 मिनट ब्रेक लेते हैं फिर हम लोग पढ़ेंगे हरे कृष्ण